Welcome back, students. Let's start the few very important related terms to the refraction of the light, and we will continue first of all that know that what is the relationship between refractive index and the speed of the light. Okay, it is a very important phenomenon, or you can say that the relationship between the refractive index and the speed of the light is that the 1 mu t is equal to, it means that the refractive index of the second medium with respect to the refractive index of the first medium, students, you can say that the speed of the means it is equal to the speed of the light in the medium 1 upon speed of the light in the medium 2. You can also say that this is equal to the wavelength of the light in the medium 1 upon the wavelength of the light in medium 2. So you can start that, say 1 mu t is equal to c1 upon c2 is equal to lambda 1 upon lambda 2. How you can say that the light of the speeds in medium 1 as well as in medium 2 will be equal to the wavelengths of the particular medium, that is a medium 1 as well as a medium 2. So as you know that the relationship from c is equal to n lambda, it means that the light of the speed of the light, that is a c, is directly proportional to the lambda. Lambda means the wavelength of the light. Okay, so from there you can directly say that c proportional to lambda. From there you can say that c1 upon c2 is equal to lambda 1 upon lambda 2. So that's why I have to write here the formula. Okay, 1 mu 2 is equal to c1 upon c2 is equal to lambda 1 upon lambda 2. So that is the basic relationship between the refractive index and the speed of the light, that is 1 mu 2 is equal to c1 upon c2 is equal to lambda 1 upon lambda 2. As well as then you can say the relationship between the refractive index and the wavelength also. So you can say refractive index of the medium 2 with respect to the medium 1 is equal to the lambda 1 upon lambda 2. Well, students, the proceeding topic is that what you mean by the absolute refraction index. Absolute refractive index, it is also kinds of the refractive index, but it's different, slightly difference between the absolute. The word is that the absolute. So what you mean that it is a particular ratio. What it is, a absolute refractive index is also a ratio of basic conditions, that you can say ratio of the light in the vacuum, that means air, upon the speed of the light in that medium. उसी मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी और जो रेशियो ऑफ वैक्यूम में इसकी स्पीड होगी, इसका जो रेशियो आएगा वो आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है. तो बोलेंगे कि रेशियो ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम्स, दैट इज एयर, एंड द स्पीड ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम. So we can say that absolute refractive index means of a transparent medium is always greater than 1. So very important topic कि जो सबसे जरूरी चीज है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का, वो हमेशा क्या होता है बेटा, 1 से बड़ा होता है. इट मींस दैट mu is always greater than 1. रीजन क्या है? बिकॉज स्पीड ऑफ द लाइट इन एनी मीडियम, किसी भी माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है, इज ऑलवेज लेस देन दैट इन द स्पीड ऑफ द लाइट, दैट इन द वैक्यूम. ओके, क्योंकि v की वैल्यू हमेशा क्या होता है, c से छोटी होती है. सो ये आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से क्या अराइज हो रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम कैन नॉट लेस देन 1. बिल्कुल सही बात है, किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 से छोटा नहीं होता है. So refractive index of a medium cannot less than 1. So you can say that 1 mu t is equal to c1 upon c2. It means that refractive index of the medium 2 with respect to the medium 1 is equal to the c2 upon mu 2 upon mu 1. You can also say that. Got it? So we will proceed it next topics, and in case on the proper one, so you have to institute just तो नेक्स्ट टॉपिक ये अभी आपने मैंने बताया आपको रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द स्पीड ऑफ द लाइट एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उससे रिलेटेड 2 टॉपिक. ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करते हैं. वेल, अगला टॉपिक है आपका कंडीशंस फॉर नो चेंज इन डायरेक्शंस ऑफ द लाइट रे ऑन द रिफ्लेक्शन. जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो रिफ्रैक्शन होता है वहां पे कुछ चीजें बदल जाती है. उसमें मैं थर्ड पॉइंट बोला था कि जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑल्सो चेंजेस, बट एक ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कंडीशंस फॉर द नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द लाइट रे ऑन द रिफ्लेक्शन. जब रिफ्लेक्शन होता है तो कौन सी कंडीशन है कि जिसमें आपका डायरेक्शन नहीं बदलता है, वो सिचुएशन ये है. पहली चीज तो व्हेन एंगल ऑफ द इंसिडेंस एट द बाउंड्री ऑफ द टू मीडिया इज 0, दैट इज अगर हम किसी तरीके से एंगल आई की वैल्यू 0 कर देंगे,
तो जब एंगल आई की वैल्यू 0 होगा तो उस सिचुएशन में लाइक दिस कुछ ऐसा होगा। सपोज करो ये हमारे पास में, एक मिनट, पाथ था और ये नॉर्मल था, तो जब एंगल आई 0 होने का तात्पर्य है कुछ ऐसे जा रहा है ये, ठीक है। तो उस सिचुएशन में अगर आपका एंगल आई की वैल्यू किसी तरीके से 0 हो जाती है तो वो सिचुएशन होगी कंडीशंस ऑफ नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द लाइट रे ऑन द रिफ्लेक्शंस। दूसरी सिचुएशन होती है when the refractive index of the two medium are same। अगर दोनों मीडियम्स का मतलब रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, ऐसे कोई भी दो मीडियम ले लीजिए, अगर उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके एक जैसे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एक जैसे हैं तो भी वो कंडीशन होती है कि उनमें जो रे ऑफ लाइट है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th बोर्ड के लिए कि कंडीशंस ऑफ फॉर नो चेंज इन द डायरेक्शंस ऑफ द लाइट रे ऑन द रिफ्रैक्शन। पहली चीज क्या होती है कि व्हेन एंगल ऑफ द इंसिडेंट दैट इज एंगल आई अगर 0 है तो उस सिचुएशन में, और दूसरा व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू मीडियम्स आर सेम, तो इस सिचुएशन में जो डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट है वो चेंज नहीं होती है। तीसरा है कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इफेक्ट करते हैं। सब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ द मीडियम, पहली चीज तो ये होती है कि नेचर ऑफ द मीडियम मतलब माध्यम की प्रकृति कैसी है। तो अगर मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज लेस स्पीड ऑफ द लाइट इज दैट मीडियम। दूसरी होती है फिजिकल कंडीशन, जैसे कि हम बात करते हैं उसके टेम्परेचर का, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। मींस म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी का मतलब ये हुआ कि इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी डिक्रीज एंड वाइस वर्सा आल्सो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कलर या वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो तरंगदैर्घ्य जो है लाइट की वेवलेंथ है, कलर है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे हुई होता है वेवलेंथ ऑफ द लाइट, लाइट की वेवलेंथ के। अगर ज्यादा वेवलेंथ है तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस सिचुएशन में कम पड़ जाएगा, मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी डिक्रीज। ओके, so these are the three very important factors at which the refractive index affected. Now हम बात करेंगे what are the principle of reversibility of the path of the light। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द पाथ ऑफ द लाइट। यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बना हुआ है, इसको एक लाइट की रेज आई कुछ ऐसी कि इधर पड़ी और ठीक उसी मीडियम में फिर से वापस हो जाती है। ठीक है, ये आपकी इंसिडेंस की स्पीड v1 है और जो इधर से वापस आएगी मीडियम 2 में जो स्पीड है वो v2 है। ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द पाथ ऑफ द लाइट का बेटा सिस्टम, ये डायग्राम है। बाय द स्नेल्स लॉ प्रिंसिपल ये कहते हैं कि जो साइन ए और साइन आर का रेशियो है वो एक कांस्टेंट होता है, तो 1 μ2 इज इक्वल टू साइन ए बटे साइन आर। इसके पहले भी मैंने आपको रिलेशनशिप बताई थी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी के बीच में रिलेशन डिफाइन की थी, वहां बताया था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है v1 अपॉन v2 या लैम्डा अपॉन लैम्डा 2 के बराबर होता है। अभी मैंने आपको इसके ठीक पहले बताया था पिछली क्लास में, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम 1 दैट इज साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू v1 बटे v2। क्योंकि जो पहला मीडियम है, पहले मीडियम में जो स्पीड है वो v1 है, दूसरे मीडियम में स्पीड कितनी है v2 है, तो साइन आई बटे साइन आर दैट इज v1 अपॉन v2। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया। देन फिर क्या किया, इफ द पाथ ऑफ द लाइट इज रिवर्स्ड व्हेन द रिफ्रैक्शन टेक प्लेसेस फ्रॉम द मीडियम टू द मीडियम, मतलब इसका उल्टा कर दिया कि अगर ऐसे मान लें कि मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है तो उसके लिए क्या होगा, मीडियम 2 से मीडियम 1 में जाने के मतलब यहाँ पे हम निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम 2 दैट इज साइन आर बटे साइन आई। ओके, साइन आर बटे साइन आई का मतलब हो जाएगा v2 अपॉन v1। इट इज इक्वेशन नंबर 2। आपने करना क्या है कि जो इक्वेशन नंबर 1 मैंने बनाई 1 μ2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, इस इक्वेशन 1 में आपको 4 से मल्टीप्लाई करके हमको ये पता चलेगा एंड देन फिर मैंने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है। सो 1 μ2 इज इक्वल टू 2 μ1 इज इक्वल टू साइन ए बटे साइन आर इंटू साइन ए बटे साइन आर। ये साइन ए से साइन आर से साइन कैंसिल हो जाएगा,
इट मींस दिस वन टर्म्स विल बी कैंसल टू ईच अदर, यहाँ बचेगा 1। तो हम कह सकते हैं कि 1 mu2 इंटू 2 mu1 इज इक्वल टू 1, या शॉर्ट में कहेंगे कि 2 mu1 इज इक्वल टू 1 अपॉन mu2। यही रिलेशनशिप होता है, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द पाथ ऑफ द लाइट। ओके, सो आगे के टॉपिक्स हम बताएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एंगल होता है, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, इसको बोलते हैं हिंदी में क्रांतिक कोण, दैट इज अ क्रिटिकल एंगल। अपने नेक्स्ट क्लासेस को प्रोसीड करेंगे। और स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के लिहाज से भी देखा जाए और हर एक तरीके से। ये जो ऑप्टिक्स सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दो ही होते हैं, रिफ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन। और आगे आने वाली जब भी आप 11th-12th में जाओगे तो ऑप्टिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यही प्ले करता है। तो आगे की क्लासेस में हम इसको कोशिश करके जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को मैक्सिमम शेयर करें, वॉच करें और उसको लाइक शेयर करना ना भूलें। हम ऐसे ही आपका सपोर्ट मिलता रहेगा और आपके लिए बेहतर से बेहतर जो भी चीजें हैं प्रोवाइड कराते रहेंगे। ये टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत करिए। आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड मोस्टली जितना हो सके लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए।